شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک بڑی بدبختی اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں ہم خود سرکار کے یعنی عوام کے ملازم اور نوکر ہوا کرتے ہیں، لیکن اپنے سبارڈینیٹس کو اپنے باپ کا نوکر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرسی ہمیں ملی ہے یہ وراثت میں میرا باپ میرے لیے ایک تخت کی صورت میں چھوڑ کے گیا ہے جہاں میں نے بیٹھ کر راج کرنا ہے، اور بحیثیت راجہ یہاں کی عوام، یہاں کے متعلقین کی ایسی کی تیسی۔ آج جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ غریب کے پیٹ، ماضی میں چلتے چولہے جو کہ آج بند ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ آج جس ڈپارٹمنٹ پر بات کرنے جا رہا ہوں میں چاہوں گا کہ اس کے تمام ذمہ داران جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بیٹھے بچے ان سے بات کریں۔ میری دست بستہ درخواست، میں اپنی ذمہ داری آج ادا کر رہا ہوں اور یہ امانت ان ذمہ داران خاص طور پر ڈی جی پیہوٹا کے بچوں کے سپرد کر رہا ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے کھانے کی میز پر اپنے والد صاحب سے یہ نہ پوچھا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور جو نوالا آپ ہماری پلیٹ میں رزق کی صورت میں لا کر دیتے ہیں، جو کرنسی نوٹ ہم پر خرچ کرتے ہیں بلکہ نچھاور کرتے ہیں، کہیں یہ کسی کے پلیٹ سے اٹھایا ہوا تو نہیں ہے، کسی کی ماں کی دعائی کا چھینا ہوا تو نہیں ہے، اور لوگ بھی وہ ہیں جن کے دم پر آپ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ کے ذاتی باپ کے نوکر نہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جو کہ بالکل آپ کی طرح قانونی طور پر برابر ہیں اختیارات میں، اگر وہ پریکٹس نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے تو آپ یہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ کا عذاب اس ملک میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ بندہ اٹھایا اس کا گردہ نکال لیا، یہ ہوتا رہے گا۔ اور ڈی جی صاحب یاد رکھیے گا کل یہ گردے نکلنے میں آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا عزیز بھی ہو سکتا ہے، پھر کیا کرو گے؟ اپنے ان ورکرز کو آواز دو گے؟ اور ایک لمحے کے لیے احساس کیجئے گا ڈی جی از ناٹ ہیئر۔ اس وقت آپ کی سکرین پر ایک لیٹر چل رہا ہے، وہ لیٹر ان کو انٹیمیٹ کر دیا گیا، اس کے سکرین شاٹس ان کو بھیج دیے گئے کہ اگر کوئی اپنی تکلیف کے حوالے سے بولے گا تو اس کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا۔ اور مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی رجواڑے میں کوئی راجہ اپنی رعایا کے لیے حکم صادر کر رہا ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ میرا قانون، میری ریاست کے تمام ڈھونگی نوسر باز بیٹھ کر بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے ہیں کہ 32,000 سے کم تنخواہ نہیں ہوگی۔ بھائی پنجابی میں کہتے ہیں منجی تلے ڈانگ پھیرو، کیونکہ یہ پارلیمانی لفظ ہے اب سے، کیونکہ شہباز شریف اس کو بول چکے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے، تو جب میرا وزیر اعظم بول چکا ہے تو ناؤ اٹ از ا پارلیمانی ورڈ۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں کے بد میں ان کو 25,000 27,000 پر رولا جاتا ہے۔ قصور ان کا یہ کہ یہ کہتے ہیں جو میرا قانون کہہ رہا ہے، بلکہ آپ کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں یار وہ تو مان لو اور ہماری ٹھیک کر دو۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صرف وہ نہ ہو کہ ایک دن بعد 2 دن بعد مجھے یہ کہنا پڑے کہ شرمڑا اندر بڑھیا، بشرم آ کیا میتھو ڈریا، تو میتھو ڈریا والی مثال گاڈ سے قائم نہ کروائیے گا۔ سو ان کی درد، ان کی کہانی، ان کی زبانی، نتیجہ I'll fight back۔ زندہ رہوں، ایمان سلامت رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کا کام ہے کہ پاکستانیوں کے آرگنز کو بچانا ان مافیا سے جو کسی کو کسی دھوکے میں لاتے ہیں اور اس کا گردہ بیچ دیتے ہیں۔ ایسی بات آپ تو خود پریشانی میں کے شکار ہیں، آپ کیا بچائیں گے؟ پریشانی سر شدید پریشانی ہے ہمیں، تقریباً 6 سال مجھے ذاتی طور پہ ہو گیا اس محکمے میں کام کرتے ہوئے۔ اچھا جی۔ جس سیلری پہ میں آج سے 6 سال پہلے لگا تھا اور ابھی تک میں سیم سیلری لے رہا ہوں، حالانکہ آج سے 1 سال پہلے مانیٹرنگ اتھارٹی نے کہا تھا کہ ان کی سیلری 2018 سے لے کے آن ورڈ ان کی 20% ہر سال کا انکریمنٹ لگایا جائے۔ ہمیں ایک سیلری ملی جس کے مطابق میری سیلری مجھے 120 فروری 2023 میں ڈرا ہوئی۔ اس کے بعد کوئی انکریمنٹ نہیں آیا؟ اس کے بعد کوئی انکریمنٹ کیا آنا تھا، اس کے بعد وہ انہوں نے ایک ہم سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا کہ اگر آپ کی
कोई कल को सरकार में मसला होता है तो हम आपसे वापस ले लेंगे। नेक्स्ट मंथ की सैलरी अगेन 75 आई और अब किस्त करके हमारी वो जो दिया था इन्होंने 1/20 वो काट रहे हैं 1 साल तक। उन्होंने 25,000, 30,000, 32,000 से कम सैलरी वाले कौन कौन है? ये सारे जरा आगे आए, ये सारे आगे आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे? सर मेरा नाम आबिद मसीह है। आबिद मसीह भाई हैं आप हमारे? जी जी। कितने अरसा हो गया आपको? सर 7 साल हो गया मैं यहाँ पे काम करते हुए। तनख्वाह कितनी है अभी एग्जैक्टली इस वक्त? इस वक्त 23 है बस। उसमें से भी जो हमारी बड़ी थी वो काट रहे हैं, उसके जो बकाया जात तो 21,000 रुपये अब हमें मिल रही है। यानी आपको एक्चुअली 21,000 रुपये? जी। तो 21,000 में गुजारा कैसे करते हैं? सर बस मजबूरी के तहत कर रहे हैं। अब मेरे घर का मीटर भी कट गया हुआ है। अब मैंने कल परसों ही कहीं से इंस्टॉलमेंट पे पैसे किसी से उधारे लिए हैं तो सूद पे आज तो नहीं लिए? नहीं किसी भाई से लिए हैं उधारे। हाँ। तो वो मैं अब आज अपने मीटर लगवाने के लिए पैसे घर पे दे के आया हूँ। ये आप हालात है एक्सपेक्ट हमारे। करते हैं कि ये लोग आपकी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिनका अपना तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं है? जब इन लोगों ने लोगों के ऑर्गन्स को बचाना है और खुद इसकी तनख्वाह 23,000, मैं बड़ा क्लियरली यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा हूँ पेहोटा के डीजी के लिए, हेल्थ के जिम्मेदारान के लिए, कि भाई कितना आसान है किसी भी शख्स को इस मुआशरे में खरीदना भाई, क्योंकि उसकी जो जायज मेहनत है उसकी पूरी पैगार उसको नहीं दी जाती। जब उसको उसका पूरा मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो कोई भी शख्स उसको खरीद सकता है। ये पेट की आग जो है ये इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। आपकी तो इतनी बड़ी तनख्वाहें लाखों में लेकर नहीं बुझ रही, तो इनके लिए आप सोचते हैं कि जो इनको 32,000 का इनका बेंचमार्क है उससे नीचे 21-22,000 पर लाकर इनके पेट की आग बुझ जाए? इज इट लिटरली पॉसिबल? इनके घर बच्चे नहीं हैं, इनके घर माएँ नहीं हैं, इनके घर बूढ़े बाप नहीं हैं जिन्होंने इनको पाल के बड़ा किया, अब इन्होंने उनकी खिदमत नहीं करनी है? भाई शरा कहती है आप लोग किस बात के बड़े हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और लोगों से बात करें, क्या हाल है? जी। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं पेहोटा से? 27,500। 27,500। और कानूनी तौर पर तो 32 से नीचे नहीं होनी चाहिए है, लेकिन क्या करें? जैसे कहते हैं कानून गया तेल लेने। जी हाँ। हैं? मुझे एक बात बताएं कि अभी यहाँ पर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला हो जाता है, आप लोग भूखे पेट उसको अनर्थ कर भी सकते हैं? जालिमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं भूखे पेट? नहीं सर, भूखा पेट के अंदर भूखा शेर चंगा लड़ता है, भूखा बंदा नहीं चंगा लड़ सकता। मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। अमीन साहब, ड्राइवर हूँ। अच्छा। 27,500 ले रहा हूँ। मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ, फैसलाबाद से हूँ। यहाँ पे एक क्वार्टर जो है वो 10,000 रुपये का है। ठीक है, 10,000 रुपये में मैंने रेंट दे दिया। 15,000 रुपये में मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बच्चों का दूध लूँ, क्या करूँ? दूध ले सकता हूँ? जिस घर में 2 किलो दूध जाता है, 3 किलो जाता है, तो वो बंदा क्या कर सकता है? मर जाए, खुदकुशी कर लें हम लोग। गवर्नमेंट ने कह दिया 32,000 कर दो, ये क्यों नहीं कर रहे? गवर्नमेंट वज़ीर आला ने नोटिस कर दिया, अब नोटिस दें ना। वो कहते हैं लेबर का हो गया, और हम लेबर से भी गिर गए। हम तो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, हमारा इतना हक भी नहीं है। वो 32 पे हमें परसेंटेज लगा के 32 तो दे दें हमें। जब मैं रेंट देने जाता हूँ तो वो इस 12वें महीने में मेरा बढ़ जाना है, वो 7,000 रुपये 10% बढ़ गया, 700 ये आ गया, 8,000। पेट्रोल ने आपसे पूछना नहीं, डीजल ने आपसे पूछना नहीं, रोटी ने आपसे पूछना नहीं, दवाई ने आपसे पूछना नहीं, बच्चों की स्कूल फीस ने आपसे पूछना नहीं, बीमारी की सूरत में इलाज ने आपसे पूछना नहीं जी। हर चीज बढ़ेगी लेकिन मुआवजा नहीं बढ़ेगा। मुआवजा नहीं बढ़ना। सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब, मैं इनको नहीं कहूंगा आपसे बात करें, मैं आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा नाहंजार हूं, मैं नालायक हूं, मुझे बदतमीज कह लीजिएगा। अगर कोई ताकत मौका मिले तो सजा भी दे लीजिएगा, डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज कि भाई आज इस तख्त के राजा आप हैं। मैं रब के हुजूर गवाही दूंगा इंशाअल्लाह अजीज, क्योंकि मुझे रोजे महशर पर यकीन है। मैं गवाही दूंगा कि मोहसिन नकवी भी सीएम बना था। मैं गवाही दूंगा कि ये वही मोहसिन नकवी है जिसका ताल्लुक इब्लागे आमा से था, जिसने बड़ी जहद के साथ लोगों की आवाज बनने का बेड़ा उठाया था। मैं गवाही दूंगा कि फिर अल्लाह ने उसको वो वक्त भी दिखाया जब मोहसिन नकवी के कलम से फैसले होने थे। मैं गवाही दूंगा कि उस वक्त मोहसिन नकवी अपने हाथ से और अपनी जुबान से लिखी और बोली हुई बात को इंप्लीमेंट करवाने में बज़ाहिर अब तक इस लम्हे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं नाकाम रहा।
नामुराद रहा और शायद इस मामले को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। ये अजाब सिर्फ पेहोटा का नहीं है, ये अजाब हर सरकारी मुलाजिम का है। मैं ऑनेस्टली मैंने पिछले दिनों सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से प्रोग्राम किया था। आप चाहते हैं कि एक शख्स जो पेट से भूखा है, बच्चे उसके बिलक रहे हैं, वो आपके हिस्से की और मेरे हिस्से की गोली खाए और उसको उसका जायज मुआवजा भी ना मिले और मोहसिन नकवी सीएम हो? तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट एंड अ थिंग टू फील शेम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वो बड़ा मारूफ माकूला है जिसका पहला मिसरा है, आब आब कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाले। मोहसिन नकवी साहब, एक माँ थी, उसका बच्चा पढ़ लिख गया, उसने फारसी जुबान सीख ली। अब जब उसने फारसी सीखी तो कई अलालत बीमारी की वजह से वो कमजोर हो गया। अब उसको पानी चाहिए था। वो अपनी माँ से क्या कहता है? आब आब। मर गया, पानी नहीं मिला। अफसोस करने वाले कोई साहब आए तो उन्होंने पूछा, बीबी की हो यासी? मोहसिन नकवी सुनिएगा, ये आपके लिए भाई। तो वो खातून कहती है कि आब आप प्या करदा सी। उसने कहा, बीबियो तेरे तू पानी मांग रहा सी, बिल्कुल इनकी तरह। बीबियो तेरे तू पानी मांग रहा सी। तो बीबी कहती है, आब आब कर मोयो बचड़ा फारसियान घर गाले, कि ये फारसी जुबान ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मुझे पता होता कि उसको पानी चाहिए, मैं उसको भर भर के प्याले देती। तो मोहसिन नकवी साहब, मैं बहुत सिंपल, बहुत क्लियर अल्फाज में, कि आपको ये शिकवा ना हो कि शायद इनकी बात, इनकी अल्फाज, इनकी जुबान आपको समझ नहीं आई थी। ये गुनाह, ये गुस्ताखी, ये नालायकी मेरे खाते डाल दीजिएगा। लेकिन इन लोगों की और इस पंजाब के बासियों के रिज़्क़ का दिफा करें। ये कुर्सी चली जाएगी इंशाअल्लाह उल अजीज, बहुत जल्दी चली जाएगी, ज्यादा देर नहीं टिकेगी। इसके साथ कोई मेखों के साथ भी जुड़ के बैठ जाए, नहीं बैठा रह सकता। ये कुदरत का निजाम है, ये जानी तय है। तो क्यों ना जाते जाते किसी के रिज़्क़ का दिफा कर लिया जाए। सो सुनिएगा कि ये क्या मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मांगते हैं भाई पेहोटा वाले तमाम मुलाजमीन? सबसे पहले मैं ये आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने वसीला बनाया, आप हमारे तक पहुंचे। सर, आप अल्लाह को गवाह जान के, एक लेटर निकला अभी मेरे स्क्रीन पर चल रहा है सर। ये अपना हाथ, ये जो आपका राइट हाथ है, मेरे दिल पे रखें जरा। जो हमारी कंडीशन है, डर चुके हैं। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। उनके दिल की धड़कन काश मोहसिन नकवी आप सुन सकते हैं, काश डीजी पेहोटा सुन सकता। ये बेचारे डरे हुए हैं कि अभी मुझसे बात करने के बाद इनकी नौकरियां उड़ जाएंगी। क्या आप जल्लाद हैं? क्या आप फिरौन हैं? क्या है आप लोग यार? आप सरकारी नौकर हैं भाई। डीजी साहब, आपके साइंस हैं ऊपर, इसके ऊपर डायरी नंबर नहीं लगा हुआ इस टाइम। स्क्रीन पर मोहसिन नकवी देखें क्या हो रहा है। इसके ऊपर तारीख मौजूद नहीं है, डीजी लाहौर में मौजूद नहीं है, लेकिन डीजी के सिग्नेचर हो जाते हैं। ये दिल इनके नहीं धड़कने चाहिए, ये आपके धड़कने चाहिए। क्यों नहीं धड़कते ये दिल? क्यों नहीं दिलों को एहसास होता कि भाई हमने मर के रब के पास जाना है? इसका बच्चा भूखा रहेगा, इसकी माँ के पास ये अपनी माँ को दवाई नहीं दे सकेगा, ये साहब अपने बच्चे की अलालत में इलाज नहीं करवा सकेंगे, ये साहब का बच्चा जो है रोजगार ना होने की वजह से किसी का माल असबाब उठाएगा, क्या आपसे जवाब नहीं लिया जाएगा? सर, इन सब की शक्लें देख लें, ये सब डरे हुए हैं। इसी बात से डरे हुए हैं कि आपके जाने के बाद हम लोग अपना सामान पैक करके घर जा रहे हैं। मैं सर 5 बच्चों का बाप हूँ, जिसमें मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। यकीन करें कि दारे अरकम स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे। 2 माह पहले उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मैं इस ऑफिस में मौजूद था, यहाँ से छुट्टी लेके घर गया कि बच्चों को घर भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? 4 माह की फीस नहीं दी थी, और उस टीचर ने यह कहा कि मैंने इनका ठेका नहीं उठाया हुआ। मैंने अपने बच्चों को 10 दिन घर बैठाने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में मिनते तरले करके सिफारिशें डलवा के, हमारे पास जगह नहीं है बच्चों को रखने की, बच्चों को एडमिट करवाया। अब मेरे बच्चे, मेरा दिल चाहता है मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े यार, अच्छी उनकी लाइफ हो। हम नहीं बन सके कुछ, तो शायद मेरे बच्चे कुछ बन जाए, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। बिलीव करें, अपने पेट में कुछ नहीं डालते, उनके लिए लेके जाते हैं। अब वो सरकारी स्कूल में जाना स्टार्ट हो गए। सरकारी स्कूल से बुक्स नहीं मिली। अब
आज हमारे बुक्स तो मिलनी चाहिए थी। सर वो लेट एडमिशन हुआ ना, स्कूल वालों ने निकाल दिया, सैलरी रुकना अब शुरू हो किताबें गई। लेने का भी मसला है। सर बहुत ज़्यादा मसला है। अब मेरी रात से बेटी दाखिल है हॉस्पिटल में, मैं जॉब पे खड़ा हूँ, इस वजह से खड़ा हूँ, इस डर से खड़ा हूँ, अगर मैंने छुट्टी की, अगर मैं यहाँ से गायब हुआ तो मेरी सैलरी कट जाएगी। वो हेल्थ डिपार्टमेंट को बताएं कि भाई ये गूंगे हमें बहरे नहीं हैं। बोलना दिया जाता ना, यही तो हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे प्रोफेसर stuck हो गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर साहब, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, पूरी कौम को बता रहा हूँ, इनके अजीजों कारिब को बता रहा हूँ, मुझे सू कर दीजिएगा सर, मुझे कोर्ट में घसीटिएगा, मुझे अरबों रुपए का हर्जाने का नोटिस भेजिएगा, मुझे हद के इज्जत का मेरे खिलाफ दावा कीजिएगा। मैं नाम लेकर बता रहा हूं कि आप इन लोगों के रिज़्क पर एक डाके की सूरत में खड़े हुए हैं। मैं खुदा की कसम खाकर अपने मालिक जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने इस शख्स के दिल की धड़कन सुनी है, खुदा की कसम खा के कहता हूं इनमें से किसी के भी सीने पर हाथ रखूंगा ना, मुझे वही धड़कन सुनाई देगी। आपके दिल क्यों नहीं धड़कते हैं? क्योंकि आपके बच्चे भूखे नहीं हैं, क्योंकि आपकी मां का इलाज के लिए आपको ये मसला नहीं आया कि मुझे उसकी दवाइयां कहां से लानी है। ये किसी की जेब काटेंगे, ये किसी का गुर्दा बिकने में उसकी मुआवनत करेंगे, क्या करेंगे? ये खुदा से डरें। लग गया जी नंबर? शर्म का मकाम, खुल के कह रहा हूं, लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फौरी तौर पर मेरे पास इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ये अंदर से किसी रजील इंसान ने ये डॉक्यूमेंट की नेक्स्ट स्टेप दी है। इसे कहते हैं प्रेशर बिल्डिंग, इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं कि शर्म वाला अंदर बढ़िया। चले बोल देता हूं दोबारा, बेशरम आख्या मेथू डरिया। सो फाइनली डायरी नंबर लग गया जी और 30/11/2023 की तारीख डाली गई है। डायरी नंबर है जी 2554 और ऑफिस ऑर्डर है। ये ऑफिस ऑर्डर कहता है कि हमें पता चला है, मैं उर्दू में बता देता हूं क्योंकि आम लोग अमूमी तौर पर नहीं समझ सकते। हमें पता चला है कि कुछ लोग पेहोटा के एम्प्लॉयज मीडिया के सामने, मीडिया हाउसेज या एजेंसीज के सामने अपना दर्द रख रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो हमें तनख्वाह का अनाउंस किया है वह 32,000 कम से कम। हम 21, 20, 25, 27 पर धक्के खा रहे हैं। तो अगर कोई अपने पेट से कपड़ा उठाएगा और अपने पेट पर बांधे हुए पत्थर दिखाएगा तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी, उसकी नौकरी को खाया जाएगा। इसे कहते हैं नौकरियां खाने वाले बिल्ले। तो अब देखना ये है कि पेहोटा से ये लोगो देख लें जी, मैं इंशाअल्लाह उल अजीज तारुफ करवाता रहूंगा आपको, उन बिल्लों के चेहरे दिखाता रहूंगा कि इस डिपार्टमेंट में पेहोटा में कौन कौन सा बिल्ला बैठा हुआ है जो लोगों की नौकरियां अपने कुंद दांतों से चबाता है। तेज दांत नहीं कह रहा, कुंद दांतों से चबाता है। ऑफिस ऑर्डर जी? ऑफिस ऑर्डर आ गया मियां साहब, मुझे कंफर्म है, मुझे निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, बच्चे रुल जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, मैं सिर्फ अपने हक के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। डीजी साहब कहाँ पे हैं इस टाइम? सर यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनके साइन हो चुके ऑफिस का इंचार्ज कौन है इस टाइम? सर डॉक्टर एडमंड साहब हैं, राजा बैठे हुए हैं? सर वो भी मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई? नाम सईद अहमद है। हाँ, मुझे भी सर 6.5 साल हो गए इधर करते हुए। मैं रायविंड से आता हूँ और तकरीबन 500 मेरा किराया लग जाता आने जाने का। अभी अभी की आज की तारीख डाली गई है जी 30/11 की, अभी अभी की। अगर सर देखा जाए मेरा 500 डेली का किराया लगता है तो दिन की 733 रुपये सैलरी बनती है। मैं आपको एक मशवरा दूं? जी सर। मुझे ये कहना नहीं चाहिए जी, मुझे ये कहना नहीं चाहिए। चले मैं इन्हें नहीं कहता, डीजी साहब से कहता हूँ, मोहसिन नकवी से कहता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर साहब से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब रिश्वत लीगलाइज कर दें, बराए करम इन लोगों के लिए लीगलाइज कर दें कि अगर हमने आपको आपकी बुनियादी तनख्वाह नहीं देनी तो जाओ लूटो इस मुआशरे को। ये मुआशरा है लूटने के काबिल।
इस मुआशरे के चीथड़े उखेड़ो, इस मुआशरे की एक एक बोटी नोच लो, शायद इसके बाद ना ये शिकवा करेंगे आपको, ना आपके लिए कोई मसला होगा। इजाजत दे दें, इसी तरह का एक ऑफिस ऑर्डर और निकालें कि गो जा आपदा खा ते साडा लिया। पंजाबी में यही कहते हैं ना, हरामखोरी करने वालों को यही कहते हैं ना। मैं बता देता हूं कि जा लगा जा आपदा खाइया ते साडा लइया। डीजी साहब कह दो इन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर, उसके ऊपर सिर्फ इतना लिखें, ऊपर ऑफिस ऑर्डर, नीचे आपदा खाइया ते मेरा लइया। आप भी फायदे में, ये भी फायदे में, हमारा शिकवा भी खत्म। हमारे जैसे लोग जब बात करेंगे तो ये हमारे मुंह पर थप्पड़ मारेंगे, चल निकले तो। अपनी गैंग में ले ले इनको भी, मिल जाएंगे आपके साथ, मिला ले इनको साथ। अस्सलाम वालेकुम। नौकरी जा रही है जी? बस सर ये एक थ्रेट आई है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, मेरा नाम बिलाल शाह है। अल्लाह पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क देने का मालिक है। मैं यहाँ पे कोर्ट क्लर्क हूँ, 2017 से मैं यहाँ पे मुलाजम हूँ और तब से लेके आज तक हमारी 1 रुपया सैलरी नहीं बढ़ी, और जो पिछले साल हमारी बढ़ी वो हमसे वापस ले ली गई। क्या फिरौन है, कौन है, क्या है ये लोग? क्या फिरौन है, कौन है, क्या है ये लोग? और ये मैं वोचर लेके घूम रहा हूँ कि किसी से पैसे मांग के मैं अदा कर दूँ। 13,800 रुपए इस बंदे ने अपने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है। ये जून जुलाई अगस्त की है, अभी दिसंबर की अभी तक पेंडिंग 6 माह की फीस पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके अलावा इतने अखराजात और बिल्स इतने आ गए इस साल, और मकान के किराए बताएं, इस 33,000 की सैलरी में इंसान कैसे गुजारा कर सकता है। हमने इनके आगे बारहा जाके तरले लिए, जितने भी अफसरान हैं, कि आपकी मेहरबानी हमारे पर करम करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज तो अल्लाह पाक ने आपको क्या पता नहीं कैसे है, कौन है, क्या है ये लोग? क्या है लोग? मरना भूला हुआ है क्या? खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते हैं क्या? क्या समझते हैं कि रोजे महशर हमने अल्लाह के हुजूर पेश नहीं होना? क्या समझते क्या है? बस ये अब यही बेहतर बता सकते हैं, हम इनके मुताल्लिक कोई किरदार कशी नहीं कर सके। सर किरदार कुशी नहीं है, रिज़्क का दिफा है। ऑलरेडी एक लेटर आ चुका है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, न कहा। चले मैं नालायक आदमी हूँ जी, मैं वापस आता हूँ। मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे नहीं चलता, आप लोग सर्व नहीं कर सकते, तो भाई कुर्सी से उतर जाएं। ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है ना मेरे भाई जिससे उठकर उतरा नहीं जा सकता। बड़ी तकलीफ से कह रहा हूं कि भाई इसकी जान छोड़ दे नहीं चला सकते, तो आपसे ज्यादा कैपेबल लोग क्यों में लगे हुए हैं। वो सिर्फ इस वजह से राइट पर्सन एट राइट जॉब नहीं आ पा रहा, क्योंकि एक रॉन्ग पर्सन वहां पर डेरा डाल के बैठा हुआ है। कोई मैयत हो उसके लिए समझ आती है कि वो जनाजे से नहीं उतर सकता, जिंदा इंसान तो उतर के अपनी जगह छोड़ सकता है अगर वो कैपेबल नहीं है। सोचिएगा। मिलता हूं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पिहोटा के डीजी प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी सिग्नेचर वाली मोहर भी बनाकर किसी को दी हुई है कि जिथे जिथे दिल करे ठप्पी लाई जाए, ठप्पी लाई जा ते काम चलाई जा। क्योंकि डीजी साहब का, मैं इस टाइम पर यहाँ पे 11:07 हुए हैं जब रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद हूँ। आज डीजी पिहोटा अपने इस दफ्तर में आई ही नहीं है। किसी को ज्यादा मेरी बात पर प्रॉब्लम हो, गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज जो है वो निकलवाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दें, मुझे सजा दे दें यार, मुझे लटका दें, लेकिन ये जरूर साबित कर दें कि डीजी के सिग्नेचर इतने सस्ते हैं। ये तो कुछ दिनों में मुझे लगता है कि उर्दू बाजार में मिलने लगेंगे। 50 रुपए दो, डीजी की मोहर ले जाओ, आप ही लाई जाओ तो काम चलाई जाओ। डीजी दफ्तर आए नहीं, डीजी के सिग्नेचर हो जाते हैं, डीजी के घर फाइलें जाती नहीं है। या तो फिर ये कहे ना कि जी मैं तो सोया होता हूँ, ख्वाब में सिग्नेचर करता हूँ। आज की तारीख भी डाल जाती है। मेरे प्रोग्राम के दौरान जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया उस टाइम डेट्स नहीं थी, फोटोकॉपी अंदर से बाहर भिजवाई जाती है। अब चूंकि मुझे अंदर से बाहर पैगाम की सूरत में ये भिजवाई गई है, तो अब मैं अंदर जाऊंगा, अब मैं अंदर जाऊंगा। इसे कहते हैं दावतनामा। इन्हों कहते हैं राह जांदे नूं सद के आपदे लिए बुला लेना। नाउ यू हैव कॉल्ड मी, आपने ये नोटिस मुझे भिजवाया, आपने बताया कि इन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे। तो चलें
میں پوری قوم کو تعارف کرواتا ہوں کہ یہاں پر راج ہے نوکریاں کھانے والے بلوں کا. اندر بھی چل رہے ہیں, آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کر لیں. السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے سر؟ میرا نام ہارون رفیق ہے. آپ کی بھی نوکری کھانے کے در پہ ہیں سر جی یہ لیٹر کو جو آپ دیکھ آپ کا قصور کیا؟ آپ لوگوں نے کوئی کرپشنز کی ہیں؟ سر ہم نے کرپشن نہیں کی, بیسیکلی آپ لوگوں نے کسی کے گردے بیچ دیے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ دبایا گیا ہے. تنخواہ ہی مانگی ہے نا. لیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کو نمبر میں نے لگایا ہوا ہے. اچھا جی جی یہ یار ادھر آپ بات سنو, ادھر گلے میں لا کے آپ لگا کے لائے ہو نمبر. یہ بیسیکلی نا مجبوراً ہمیں لگوایا گیا. کس نے لگوایا ہے؟ سر یہ ڈی جی آفس سے امپلائی آئے ہیں جو کہ ہمارے ہوٹا گئی ہیں. نام کیا ہے اس کا بھائی؟ اجمل صاحب ہیں. اجمل صاحب ہیں. کہاں پہ ہیں؟ ادھر کھڑے ہیں, اندر بیٹھے ہیں. چلے انہیں اندر جا کے سلام ان کے حضور پیش کرتے آتے ہیں, وہ لیٹر لے کے آتے ہیں. آپ کلیریکل سٹاف سے ہیں؟ سر یہ میں ریسیپشن سے ہوں. ریسیپشن سے, یعنی ریسیپشن والا بندہ ڈائری نمبر لگا رہے ہیں. سر نمبر ایسے لگوایا گیا کہ ہمیں یہ لیٹر آگے دیا گیا ہے, تو جیسے کہ سارا سٹاف ہمارا باہر ہے انٹرویو کے لیے, تو اس کو اگر نمبر نہ لگتا نا تو پہلے تو یہ تو نکل ہی آیا کہ ہم نے جانا ہی جانا ہے. اس سے پہلے آپ کہیں نہیں جا رہے, مجھے اللہ پر بڑا اس سے یقین پہلے ہے. ہماری انکوائری ہونی تھی, ایک شو کاس ہوتا, ایک کے ساتھ میں ٹوکتا ہوں بھائی کو, اس کی حالت دیکھیں, یہ اس کے ہاتھ دیکھیں, کیمرہ اگر فوکس کر سکے وہ کام پہ ہے. وہی درد جو میرے دل میں تھا وہ نمبر آپ بیچارہ لا کے لے آئے. سر وہ مجبوراً لگوایا گیا نا, مجبور ہے, لگوایا گیا, نہ لگوایا تو اس سے پہلے گھر بھیج دیا جائے گا. مین مسئلہ یہی ہے سر, ہمارے چھوٹے بچے, ہم ڈرتے ہیں گھر جانے سے. ہمارے پاس ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کیا نام ہے جی ان کے صاحب کا؟ پی اے صاحب جی. پروفیسر ڈاکٹر محمد شہزاد انور ڈائریکٹر جنرل اور ایڈمنسٹریٹر ہیں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے. تو ان کا دفتر ہے دفتر خاص, بلکہ دربان ہے, اور اٹ از لاکڈ. اب دکھانا کیا محسن نقوی صاحب؟ سادہ سی چیز, دفتروں پر تالے پڑے ہیں, نیم پلیٹ بار لگی ہوئی ہے. آج سر 30 تاریخ ہے, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ 30 ہے سر. ٹائم ہوا ہے جی 11:11. جی بالکل. جھوٹ تو نہیں بول رہا بھائی کوئی ایک بندہ سر؟ سو یہاں پر موجودہ صورتحال یہ کہ آفس لاک ہے, لیکن آج بند دروازوں میں ڈی جی کے سگنیچر ہو جاتے ہیں صرف اس بات پہ کہ اگر ان امپلائیز نے اپنی تنخواہوں پر بات کی تو نوکریوں کا ڈے آ جائے گا. السلام علیکم سر. سر تشریف رکھیے گا. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. اس میں گرامی کیا ہے بھائی کا؟ میرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر بھائی تشریف رکھیں. آپ ڈی جی صاحب کے پی ہیں؟ میں ان کا پی ایس او سر. پی ایس او سر. ڈی جی صاحب آج تشریف لائے تھے؟ سر شہزاد انور صاحب جو ہے نا وہ ایڈیشنل چارج پہ ہیں, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یورولوجی, اور یہاں پہ وہ ایڈیشنل چارج پہ ہیں. ٹھیک ہے. یہ عرصہ دراز سے ایڈیشنل چارج چل رہا ہے نا؟ یہ تھوڑے ٹائم ہاں عرصہ دراز سے سر, عرصہ دراز سے چل رہا ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا. اچھا آگے آپ بتائیں, یہ سگنیچر آج کی ڈیٹ میں اس آفس آرڈر پر ہوتے ہیں, یہ کیا سائنس ہے؟ اور امپلائیز جن کی تنخواہیں 32,000 پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے, محسن نقوی سی ایم نے اناؤنس کی ہے, کیا سی ایم ڈزنٹ میٹر فار اس؟ ویری سوری لیکن میں آتھرائز نہیں ہوں, میں کچھ بھی کامنٹ نہیں دے سکتا. نہیں ٹھیک ہے, آپ اپنی جو بات آپ کہہ دیں کہ میں نہیں اس پر بات کرنا چاہتا. میرا سوال سادہ ہے, یہ جو آفس کا نمبر لگایا گیا اس ڈاکومنٹ کو, یہ کیسے لگ گیا؟ اور جس نے لگایا اس نے بھی آ کے بتا دیا کہ جناب میرے سے لگوایا گیا. سر میں اس پہ یہ ڈائریکٹر ایڈمن جو ہے سارے آپریشنز کو دیکھتے ہیں, تو میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. ڈائریکٹر ایڈمن صاحب کہاں پر ہوں گے؟ ان کا آفس ہے ساتھ. He is not there. You don't have any official person there in the hospital. اس وقت جب آپ کے لوگ تنخواہوں کے لیے مر رہے ہیں, ان کے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے, ان کی وہ اپنی پیرنٹس کے علاج کے لیے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ان کا بیسک رائٹ ہے 32,000. آپ لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا. سر میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. I am honored for that. میں ملٹیپل کوشچنز میں نے کیے اور انہوں نے اس پر ایک ہی جواب دیا کہ میں اس پر کامنٹ نہیں کر سکتا. obviously وہ آتھرائزڈ نہیں ہے, لیکن آنے کا یا مقصد, دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی پنجابی کا محاورہ ہے کہ وہ ایک اندھی خاتون تھی, اس کو کسی نے بٹھا دیا چکی پہ, اس نے کہا بہ جائے تھے دانے پی,
वो दाने पीस रही थी, तो जब वो दाने पीस कर आटा दाएं साइड पर एक पतीली में रखती थी, तो वहां एक कुत्ता आता था कि उस आटे में मुंह मार जाता था। तो फिर मुहावरा बना, अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चट देना है। जिंदा दिली देखी, पहले इस बंदे की आपने जिंदा दिली देखी, इसके खिलाफ निकले हुए लेटर पे इसने खुद नंबर लगाया। हमारी जिंदा दिली देखें, इधर मीटिंग चल रही है और हम लोग मीटिंग करवा रहे हैं, हमने कोई काम बंद नहीं किया। सिर्फ मुतालबा यही है कि हमारी सैलरी जो गवर्नमेंट ने कर दी है यार वो दे दो। एक रिक्वेस्ट करूं आपको, एक रिक्वेस्ट करूं, जी जी सर, आपने स्टेट अफेयर्स रोकने नहीं है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। देखें पिहोटा में मरीज उसके लवाहिकीन आते हैं, डोनर रिसीवर के मामला चल रहे होते हैं, कोई ऐसा पेशेंट ना हो जो हमारी वजह से किसी नुकसान का सामना करे। इंशाल्लाह हम ताकि अल्लाह के हुजूर हर तरह से पहले भी तावन किया था, अब भी तावन कर रहे हैं। पहले भी लेटर मिले थे, फाइलें गंदी हो चुकी हुई हैं, फाइलों में लगे हुए हैं, आने वाला डीजी हमें स्टैंड नहीं देगा, आगे हमारे ऑर्डर शायद ना हो सके। अब भी हम अपने देखें, आपके सामने मीटिंग चल रही है, काम में रुकावट नहीं है। मैं यहाँ पर बोल भी निस्बतन आहिस्ता रहूं, काम में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन और खुदा दे बंदे हो, इन्हां दी रोटी टुकर नूं क्यों लत मार रहे हो? क्या आपने कोई परमिट लिखवा कर लाए हुए हैं, कोई आपने स्टैम्प करवाया हुआ रब के साथ कि आपके रिज़्क को कोई नहीं छेड़ सकता? डरें अल्लाह से उस वक्त से पहले कि रब आपको खुद डरा दे। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।